गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट हम लोग देख रहे थे, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इन दिस वन वी आर वाचिंग व्हाट इज साइंस. The today's world is open for new inventions and new discoveries, right? So that discoveries and invention is called scientific progress or science. So science are two types: natural science and social science. The natural science is just like universally accepted. We are just tested on it in laboratory, and it is possible to find out the result and control the situations. But the social science are a psychological concept. It is not universal phenomenon. Not all over the world accepted this all social science, because social science is define the human behavior or human tendency. So each and every human are being different to each other, so therefore they are called social science. Next one is, we are watching the concept of economics. The economics is one kind of social science. It is also called queen of the social science. Economics word came from Greek word oikonomia, which meaning is management of household. Just like in our home, we are doing so many things and we have to manage so many things, right? So therefore the economics is study how the country is managed to all their income and how the country is going to start. That is defined in economics. Okay. So after once we are watching each and every economist concept. The first economist is Kautilya. So we are watching Kautilya's view. The Kautilya's definition is called Arthashastra. In this one, Arth means wealth यानी property and शास्त्र means science. Property जमा करने का या accumulate करने का शास्त्र यानी economics. Okay. प्रॉपर्टी एक्वायरिंग यानी जमा करना और उसको मैनेज करना यानी इकोनॉमिक्स होता है. ओके. तो इसकी जो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट. पहला, गवर्नमेंट का रूल सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो. दूसरा, उसने जो भी आप प्रॉपर्टी जमा करोगे उसका लोगों के भले के लिए यानी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करना है. थर्ड, उसने बोला है अच्छी गवर्नमेंट के लिए जो जो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फोर्थ वन, ही इज शोइंग दैट टू मैनी पॉलिटिकल आइडियाज़ in their book Arthashastra. Okay. Afterwards we are watching Adam Smith. The Adam Smith is called father of economics. Whatever the books we are watching in economics, that all are written by this person, and whatever we are teaching in economics, that's totally depend on this man, that is called Adam Smith. Okay. The Adam Smith's definition is wealth oriented. He is only thinking about the wealth or property. Okay. He's written one book in 1776 that is called An Inquiry of Nature Causes to the Wealth of Nation. Okay. In this one he is showing the 4 point. First one, laissez faire policy. लेजर फेयर पॉलिसी कौटिल्य कहता था कि गवर्नमेंट का क्रूशल रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है. एडम स्मिथ कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए अगर आपको कंट्री को प्रोग्रेसिव करना है. दूसरा, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, पैसा जमा करना है या कैपिटल जमा करना है. कौटिल्य का ये मानना था कि जो भी कैपिटल कलेक्शन हो रहा है उसको सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करना है. लेकिन एडम स्मिथ का कहना ये था कि कैपिटल और वेल्थ खुद के लिए एक्यूमुलेटेड करना चाहिए. नेचर लॉज इन इकोनॉमिक अफेयर, इसने नेचर के सारे लॉज इकोनॉमी से रिलेटेड ये शो आउट किया था. बच्चा जब जन्म लेता है उसके बर्थ से लेकर मरने तक सब चीज़ों के पीछे सिर्फ इकोनॉमी यानी पैसा रहता है. दैट मीन्स नेचर के सारे लॉ, जो भी हम इन्वेंशंस कर रहे हैं, जो भी हम खोज कर रहे हैं, वो सारे की सारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, ऐसा मानना एडम स्मिथ का था. उसी के साथ उसने डिविजन्स ऑफ लेबर किया था.
इसका मतलब उसने ये दिखाया था कि लेबर अलग अलग टाइप्स के होंगे, स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, ओके, एजुकेटेड लेबर, अनएजुकेटेड लेबर। तो ऐसे उसने लेबर की डिविजन्स अपने बुक में डिफाइन किए थे। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ओके, तो दो इकोनॉमिक्स देखने के बाद अभी हम तीसरा इकोनॉमिक्स देखेंगे जिसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल की भी जो बुक्स है ये वेलफेयर ओरिएंटेड है। वेलफेयर यानी लोगों का भला होना चाहिए, इस बात को लेकर उसने अपनी इकोनॉमिक्स की बुक लिखी है। इसकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये नाम बहुत ही ध्यान से याद रखना है क्योंकि आपको आगे सारे के सारे लॉज इसी बुक से सीखने हैं। दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस बुक इज़ पब्लिश इन 1890। 1890 को ये बुक छापी गई थी या लिखी गई थी। ओके, डेफिनेशन देखो क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट्स एग्जामिन दैट पार्ट इंडिविजुअल और सोशल एक्शन which is closely connected to attainment use of material requisite of well-being। ओके, अभी इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये दिखाया था कि इंसान के पास जो पैसा रहता है, ओके, उस पैसे का इंसान कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, वो एक सिंगल इंसान हो या ग्रुप में हो, ओके, वो इंसान उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर सकता है वो इस बुक में दिखाया है कि इंसान अगर सिंगल है या ग्रुप में है तो भी वो पैसे का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। ये इकोनॉमिक्स की बुक में उसने शो आउट किया है। ओके, अभी इसकी बुक में इसका मानना ये है कि इकोनॉमिक्स ये एक कॉमन मैन जो लाइफ में बिजनेस करता है, कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन यानी कॉमन मैन यानी एज एन मिडिल क्लास मैन या पुअर मैन, वो दिन भर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में इसने अपने बुक में लिख के रखा है। इसकी डेफिनेशन, एक पर्सन्स या एक सोशल ग्रुप दिन भर इकोनॉमिक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करता है उन सारे एक्टिविटीज़ का मोटिव या उन सारे एक्टिविटीज़ के पीछे जो भी उसको मटेरियल चाहिए जीने के लिए, दैट इज़ फंडामेंटल नीड्स और लग्जरी नीड्स कंप्लीट करने के लिए जो कुछ मटेरियल चाहिए वो मटेरियल वो कैसे कलेक्ट करेगा इसमें शो आउट किया है। ओके, अभी इसके डेफिनेशन की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन। इसने कॉमन मैन के बारे में पहली बार पढ़ाई की है। ओके, अभी हमने कौटिल्य का देखा, कौटिल्य ने पॉलिटिकल्स यानी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए वो बताया। एडम स्मिथ की डेफिनेशन देखी, उसने सिर्फ पैसे कैसे कलेक्ट करना है, वेल्थ एक्यूमुलेशंस, उसके बारे में बताया। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल्स इसने पहली बार अपने बुक्स में कॉमन मैन की स्टडी की है। किसकी स्टडी? कॉमन मैन की। दूसरा, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियर साइंस। अभी कौटिल्य की डेफिनेशन क्या है कि इकोनॉमिक इज अ वेल्थ साइंस। एडम स्मिथ की डेफिनेशन क्या है? वेल्थ साइंस। बट अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? बिहेवियर साइंस। हर एक कॉमन मैन का पैसे के लिए या इकोनॉमिक के लिए जो बिहेवियर होता है उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स, ऐसा इसका मानना है अल्फ्रेड मार्शल का। ओके, तीसरा, इसकी जो बुक्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसने मटेरियल वेलफेयर, मतलब जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, ऐसी डेफिनेशन लिखी है। मटेरियल वेलफेयर इसको कहा जाएगा। मतलब वॉट एवर द मनी इज़ अवेलेबल इन योर हैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंप्लीट योर फंडामेंटल नीड्स एंड देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट टू कंप्लीट देयर लग्जरीज नीड। ऐसा इसका मानना था कि पहले आप जो ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट करो, फंडामेंटल नीड्स, फिर उसके बाद आप लोग लग्जरीज गुड्स पे ध्यान दो। मतलब पैसा फ्री जो चीज़ें लाइफस्टाइल के लिए लगती है वो चीज़ों को कलेक्ट करो। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक इज़ नॉट स्टडी ऑफ वेल्थ। इसका मानना ये था कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं होता है। ओके, हमने देखा है एडम स्मिथ और कौटिल्य क्या कहते थे कि ये दोनों क्या है, सिर्फ वेल्थ की स्टडी है इकोनॉमिक्स, राइट।
लेकिन अल्फ्रेड मार्शल कहता था कि ये वेल्थ की स्टडी नहीं है, ये सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं है। ओके, तो 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला, इसकी डेफिनेशन कॉमन मैन की स्टडी है। इसने हर एक इंसान का बिहेवियर इकोनॉमी से रिलेटेड कैसे होता है वो शो आउट किया है। उसके बाद इसने मटेरियल्स वेलफेयर, यानी जो आपके पास पैसा है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, ये मटेरियल वेलफेयर दिखाया है। और उसके बाद इसकी जो इकोनॉमिक्स है उसमें ये सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं होती, ऐसा वो शो आउट करता है। नेक्स्ट है रॉबिन्सन, लियोनल रॉबिन्सन। अभी इसकी इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या है देखो, लियोनल रॉबिन्सन। अभी लियोनल रॉबिन्सन, इसकी इकोनॉमिक्स की बुक्स बहुत फेमस है, ये मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। ओके, इसने एक बुक लिख के रखी थी जिसका नाम है द एसे ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस, द एसे ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस इन साइंस। ओके, ये बुक उसने लिखी 1932 को, जिसकी डेफिनेशन स्कैरेसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। स्कैरेसिटी यानी आपके पास कुछ चीज़ों की कमी होना। ओके, तो स्कैरेसिटी यानी कमी होना। ओके, तो इसकी जो हमारे पास चीज़ों की कमी होती है या पैसों की कमी होती है उससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशंस है। ओके, अभी डेफिनेशन देखो क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर टू द रिलेशनशिप बिटवीन एंड ऑफ स्केयर मीन्स द अल्टरनेटिव व्यूज़। अभी इसकी जो डेफिनेशन है उसमें उसने ये दिखाया है कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ये एक स्टडी है इंसान के बिहेवियर की, इंसान के बिहेवियर की ये स्टडी है जिसमें इंसान क्या दिखाता है कि इंसान बिहेवियर की ये स्टडी है जिसमें इंसान दिखाता है कि अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसके लिए क्या करो, अल्टरनेटिव यूज़ ढूंढो यानी ऑप्शन ढूंढो। ओके, अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसके लिए ऑप्शंस ढूंढो, ये वो कहता है। ओके, अगर आपके पास पैसे कम है तो उन कम पैसों में आप कैसे दूसरी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ये अल्टरनेटिव यूज़ फाइंड आउट करो, ऐसा लियोनल रॉबिन्सन का कहना था। ओके, जैसे फर्स्ट है वांट्स आर अनलिमिटेड। अभी इसकी देखो डेफिनेशन क्या है। वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान की ज़रूरतें कभी कम नहीं होती। ओके, एक ज़रूरत कंप्लीट हुई, एक वांट्स कंप्लीट हुई कि दूसरी वांट्स आती है, फिर दूसरी वांट्स कंप्लीट हुई तो तीसरी आती है, राइट। नेक्स्ट, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड। इंसान को ज़रूरतें कंप्लीट करने की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। ओके, आपके घर में रेशन है, खाना खाना आपकी पहली वांट्स है, जैसे आपने खाना खाने की वांट्स कंप्लीट की, दूसरी वांट्स आती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की वांट्स कंप्लीट की तो तीसरी चीज़ आती है वाटर या वाटर बिल। तो ऐसे एक के बाद एक आपकी ज़रूरतें यानी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। उसको कंप्लीट करने वाली जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड है, जैसे पानी बहुत कम अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, देन खाने की चीज़ें आप हर महीने 10-20 हज़ार का राशन नहीं भर सकते, राइट। तो मीन्स क्या है, लिमिटेड है, सॉरी मील्स क्या है, कम है, लिमिटेड है। तो ऐसी चीज़ में रॉबिन्सन का कहना है कि आप कौन सी चीज़, कौन सी ज़रूरत इम्पोर्टेंट है वो देखो और उनको प्रायोरिटी दो। ओके, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ को प्रायोरिटी दो, राइट। अगर कम है तो उसके लिए रोते नहीं बैठना है, जो आपके पास अवेलेबल है उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। अभी इसके डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि समझो, हाँ इंडिया जैसी कंट्री है, वहाँ पे मशीनरी नहीं है, राइट। तो इंडिया क्या करेगी, उनके पास लेबर बहुत है, लेबर का इस्तेमाल करो। वो नहीं है इसलिए रोते नहीं बैठना है, जो अवेलेबल है उसमें क्या करो, बेनिफिशियल करो। ओके, ऐसा रॉबिन्सन का मानना है। एंड लास्ट है मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज़। तो वही जो आपके पास अवेलेबल है चीज़ें, उनको अलग अलग
चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो। जैसे आपके पास लेबर है तो लेबर में से कुछ स्किल लेबर होंगे जिनको जो सीखे हुए हैं उनका इस्तेमाल अलग से करो, इंजीनियर्स का। कुछ अनस्किल लेबर होंगे जैसे कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो भी उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे जो चीज़ें आपके पास नहीं है या जो अवेलेबल है उनको अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस करो, ऐसा लियो रॉबिन्सन का कहना था। ओके, तो 4 चीज़ें। वांट्स आर अनलिमिटेड, ज़रूरतें बहुत कभी कम नहीं होती, गरजा कधीच कमी होत नाही। नेक्स्ट, उसको कंप्लीट करने वाली चीज़ें क्या है, उसको कंप्लीट करने वाली चीज़ें यानी मीन्स लिमिटेड है। ओके, तो कौन सी ज़रूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखो, उसको प्रायोरिटी दो, और फिर बाद में जो अवेलेबल है उनका अल्टरनेटिव यूज़ करो। ओके, समझो अभी मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, राइट। तो एक मोबाइल फ़ोन लेने के बाद टीवी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीवी में मोबाइल देख सकते हो, राइट। मतलब आप अगर आपकी ज़रूरतें बहुत है लेकिन उनमें से कौन सी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखो, उसको पहले कंप्लीट करो, उसको ग्रेड पहले दो, और फिर बाद में बाकी चीज़ों को कंप्लीट करो, ऐसा लियोनार्ड रॉबिन्सन का कहना था। तो 4 इकोनॉमिस्ट है, चारों के अलग अलग मीनिंग है, देखो ध्यान से पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।